Welcome to EduBridge IAS in News. I'm Nitish Sharma, and today we'll be discussing an important topic which is related to the current affairs as well as Indian polity and governance. Okay, so very recently, Mr. Jairam Ramesh, a MP, has moved a privilege motion against the Times Now news channel. He has moved a privilege motion against this channel regarding the publication of news of the panel's report. ठीक है, इस न्यूज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक EduBridge IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट updates regarding anything that is important for UPSC preparation. Now, if you are preparing for UPSC 2021, we are bringing a comprehensive course for current affairs that will be beginning on 1st of August 2021, and this will cover current affairs till the September 2021. We will be having exhaustive discussion regarding the current affairs syllabus, and there will be a complete linkage of GS with the current topics. You will be provided daily practice questions and comprehensive notes. The course fee has been kept very minimum, and this session will be taken by me, Nitish Sharma. Okay, chalo, let us continue with what is there in the news. So the Congress leader and member of parliament and a former union minister, Shri Jairam Ramesh, who is chairing the Parliamentary Committee on Science and Technology, has moved a privilege motion against the Times Now news channel for falsified and mischievous reporting of the proceedings of the panel's meeting. यानी कि Times Now channel ने इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको एज पर जयराम रमेश एक फॉल्सिफाइड मैनर में प्रेजेंट किया है. तो उसके लिए हमें समझना होगा कि क्या होता है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर द स्पेशल राइट्स that are provided to the members of parliament, the members of parliament of two houses. Comment section में बताइए कि what are the parts of the parliament. ठीक है, what are the parts of the parliament. These privileges are also available to the members of state legislature. The members of state legislature also have these privileges. अब ये क्या है? Privileges है for those who are not only the members of these houses but also those who are entitled to speak in these houses. जैसे कि Attorney General at the union level, Advocate General at the state level, and the union and the state ministers. These privileges for the union is provided under Article 105 of the Constitution, and for the state it is provided under Article 194. For the state it is provided under Article 194. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये जो privileges हैं, these are divided into two types of privileges. One is collective privilege and other is individual privilege. तो पहले वो आपको समझाते हैं कि collective privileges क्या है. तो collective privileges ये है कि house collectively have some privilege जहां पर it has the right to publish its report, debates and proceedings, and इनके पास ये भी right है कि prohibit कर सकते हैं इन सबको publish करने से. ठीक है, तो ये खुद की रिपोर्ट्स, डिबेट्स और प्रोसीडिंग पब्लिश भी करवा सकते हैं एंड ये प्रोहिबिट भी कर सकते हैं इनको पब्लिश करने से. अब देयर वाज एन अमेंडमेंट इन द ईयर 1978, दैट इज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्टोर किया था, जहां पर अगर कोई ट्रू इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स दैट कैन बी पब्लिश्ड विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द हाउस. लेकिन इफ देयर इज सीक्रेट सिटिंग सो इट कैन नॉट बी पब्लिश्ड. कमेंट सेक्शन में बताइए who has the power to allow a secret sitting of the house. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा. इस प्रिविलेज में the presiding officer can exclude stranger from the proceedings and discuss the important matters. उनके पास पावर है to right to regulate their own procedure and the conduct of their business, and अगर उसमें कोई भी privilege में violation होती है, they have the power to adjudicate upon such matters. These are the collective privileges. Now उनके पास पावर टू पनिश भी है, पावर टू पनिश द मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स. यानी कि नॉट ओनली द पीपल हु आर विद इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग दीज प्रिविलेजेस बट आल्सो द आउटसाइडर्स कैन बी पनिश्ड फॉर द ब्रीच ऑफ देयर प्रिविलेजेस. उनको क्या करा जा सकता है? रिप्रिमांड करा सकता है, एडमोनिश करा जा सकता है, एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपल्शन इन केस ऑफ मेंबर्स. ठीक है, तो रिप्रिमांड भी करा जा सकता है, एडमोनिश किया जा सकता है, एंड इम्प्रिजन. कॉमन लैंग्वेज में समझिए, रेप्रीमांड मतलब थोड़ा सा डांटना, एडमोनिशन मतलब बहुत ज्यादा डांटना, एंड इम्प्रिजन मतलब अ पर्सन इज सेंट टू कस्टडी. ठीक है, इनके पास क्या और पावर्स होती है?
कि the presiding officer must get the immediate information regarding the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member. They also can institute inquiries and the order the attendance of witness and send for relevant papers and records. यानी कि कोई इंक्वायरी करनी हो, किसी मेंबर को हाउस में बुलाना हो who has witnessed और जिसने उस प्रिविलेज को ब्रीच किया है, एंड कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है. सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज जो प्रोवाइडेड है कि कोर्ट्स को हाउस की प्रोसीडिंग और कमिटी में इंक्वायर करने की पावर्स नहीं है. सो द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड एंड कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, आइदर मेंबर और आउटसाइडर, कैन बी अरेस्टेड और लीगल प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड ओनली विद द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना ही कोई हाउस के अंदर अरेस्ट हो सकता है, ना ही कोई लीगल प्रोसीडिंग बिगिन कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर दी कलेक्टिव प्रिविलेजेस. इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी है मेंबर्स के पास. वो क्या प्रिविलेज है कि कोई भी मेंबर सेशन शुरू होने से 40 डेज पहले एंड सेशन शुरू होने के 40 डेज बाद, सेशन शुरू होने से 40 डेज पहले एंड सेशन शुरू होने के 40 डेज बाद तक कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर अ सिविल केस. ठीक है, इफ देयर इज अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट दैट मेंबर और दैट मेंबर इज टू बी अरेस्टेड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, देयर कैन बी सच एन अरेस्ट. हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी सेशंस और मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस इज प्रोवाइडेड. ठीक है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस आर प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज यूपीएससी 2020 क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज यूपीएससी 2020 क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन कितने मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस प्रोवाइड करता है. द मेंबर्स दे आल्सो हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द हाउस. यानी कि कोई भी मेंबर हाउस में कोई भी बात करते हैं, हाउस में कोई भी वोट करते हैं, हाउस में किसी कमेटी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग. ठीक है, दैट इज नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग गिवन दैट दे आर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ द पार्लियामेंट. These members are exempted from jury service. यानी कि इन मेंबर्स को जिनके पास प्रिविलेज है उनको ज्यूरी सर्विस में कंपल्शन नहीं है. At the same time, they can refuse to give evidence and appear at itself as a witness in case there is a case pending in the court when the parliament is in session. So these are the individual privileges. जरूरी क्यों है ये प्रिविलेजेस, क्यों प्रोवाइड की गई है? ये प्रिविलेजेस इसलिए है बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू डू वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड फॉर दैट दे नीड इंडिपेंडेंस एंड टू इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव दे हैव टू वर्क विदाउट फियर एंड फेवर. इसीलिए उनको प्रिविलेज प्रोवाइड की गई है. ये दे आर आल्सो प्रोवाइडेड सो दैट the house can maintain the authority and dignity and honor, and also there shall not be any obstruction in the discharge of the parliamentary responsibilities. इसलिए ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई है. अब सोर्स क्या है? पहला सोर्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 105 फॉर द यूनियन एंड 194 फॉर द स्टेट. बहुत सारे लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, दैट इज रूल्स ऑफ लोकसभा, रूल्स ऑफ राज्यसभा. ठीक है, ये बताइए अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में अपने रूल्स नहीं है, क्या वो लोकसभा के रूल्स फॉलो कर सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका आंसर बताइएगा. कैन अ स्टेट लेजिस्लेचर वेयर द रूल्स आर नॉट क्लियर कैन दे फॉलो द रूल्स ऑफ लोकसभा? ठीक है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस आर आल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ. पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब कि ऐसा होता रहा है, दैट इज अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन. एंड एनी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ. ठीक है, अब क्या ये डिफाइन है किसी लॉ के अंडर? नहीं. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डिफाइन है, लेकिन अभी भी कोई लॉ ऐसा नहीं है जो बहुत क्लियरली इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिफाइन करता है. एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोवाइडेड था कि जो प्रिविलेजेस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं, वही प्रिविलेजेस इंडियन पार्लियामेंट्री मेंबर्स को भी सेम प्रिविलेजेस मिलेंगे, वैसे ही इंडिया के अंदर. विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये प्रोविजन हटा दिया गया है और उस प्रोविजन में ये लिखा है कि जो इस एक्ट के आने से पहली डेट तक जो भी प्रोविजंस थे, दैट प्रोविजंस विल कंटिन्यू. इट मींस प्रोविजंस वही रहेंगे, बस ये हाउस ऑफ कॉमन नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है. ठीक है, व्हेन यू विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस, आपको कभी-कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है दैट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सेम है, तो इट इज नॉट हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इट इज हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है, अब what happens where we say that it is a breach of privilege. तो या तो कोई वायलेशन होती है जो भी प्रिविलेजेस हमने आपको समझाई है उसकी, या फिर कोई ऐसा काम होता है जिसके थ्रू ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि उनकी प्रिविलेज ब्रीच हुई है. इसमें इंक्लूड क्या होता है? इट इंक्लूड्स न्यूज आइटम्स, एडिटोरियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरव्यूज या फिर पब्लिक स्पीचेस.
ठीक है, कोई भी चीज जहां पर आप फ्रीली यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ बट इट इन एनी वे वायलेटिंग द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, अब पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ये है दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन मेक श्योर दैट द पर्सन जिन्होंने वायलेट करी है, दैट पर्सन इज प्रेजेंटेड विद इन द प्रिसिंक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस एंड द पर्सन कैन बी गिवन वार्निंग और अ पर्सन इज सेंट टू प्रिजन। ठीक है, पर्सन इज सेंट टू प्रिजन। अब हमारे दिमाग में आता है ऐसा क्या कभी पहले हुआ है? तो ऐसा हुआ था 2008 में, जब एक उर्दू वीकली फॉर अ पर्पस, हम जो है नाम नहीं बता रहे हैं, बट एन उर्दू वीकली, उन्होंने डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए सम ऑफेंसिव वर्ड्स यूज करे थे एंड द प्रिविलेज कमिटी हैज हेल्ड दैट द एडिटर इज गिल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। लेकिन कमिटी ने बोला कि इट्स बेटर कि हम ऐसे कोई आर्टिकल को अंडू इंपॉर्टेंस ना दे, बिकॉज देन इट विल लीड टू चीप पब्लिसिटी। ठीक है, तो उनको कोई पनिशमेंट ना देके छोड़ने की बात कह दी गई थी। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आपके लिए क्वेश्चन ये है, बिकॉज राइट नाउ the speech of our honorable president of India regarding his salary is too much in news. तो question ये आ सकता है involved with the parliamentary privileges, that do parliamentary privileges extend to the president of India? ठीक है, comment section में please give us your answer. अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीपीटी चाहिए तो you can join our telegram channel where we will provide the PPT of this video. We are also providing you daily quiz, daily current affairs and daily quiz discussion. And also if you want some interesting memes related to UPSC, then also you can join our channel, because what we believe in becoming the bridge to your success, and if we are crossing the bridge with happiness, that would be the best thing. Thank you very much. We'll continue tomorrow with some other important topic. Thank you very much.